हम लोगों ने पढ़ा what are carbohydrates, what are the different types of carbohydrates we have. Like for example, we have carbohydrates like monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. Monosaccharides are generally known as the simple sugars, correct? They are the basic molecules of carbohydrates, so called as the simple sugars. Then we have disaccharides, which are made up of more than one or rather two molecules of sugar. So two molecules of monosaccharides will form disaccharide. And then we have the polysaccharides, which are the one which are formed by more than two simple forms, that is monosaccharides, correct? So we call that as polysaccharides. तो ऐसे हम लोगों ने पूरे ये सारे स्ट्रक्चर्स रादर वी कैन से एग्जांपल्स पढ़े थे हम लोगों ने अलग अलग टाइप के. व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स, जैसे व्हाट आर द मोनोसैकेराइड्स, कैन एनीवन टेल मी टाइप मोनोसैकेराइड्स, एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड्स फटाफट बोलो. Examples of glucose, okay, fructose and one more, glucose nahi, glucose and galactose, lovely, glucose, fructose and galactose, fantastic. So fructose, glucose and galactose, galactose, glucose, fructose, glucose, galactose. Wow, very good, everyone is writing it down. So just remember glucose, fructose and galactose, glucose, fructose and galactose, these are the three best examples of monosaccharides. What are the examples of disaccharides? चलो फटाफट, disaccharides, sucrose, maltose. आयशा सानिका ने तैयारी रखा था, she had typed the message and she was waiting send करने के लिए. Bhakti also done the same thing. Very good. Sucrose आता है, maltose आता है, and lactose. Lovely, fantastic. Sucrose is made up of what? Sucrose is made up of, yes, जल्दी जल्दी जल्दी. Sucrose is formed by, yes, Prakhar, correct. Glucose and fructose. Very good, Dhananjay. Very good, Ananya. Very good, Gayatri. Fantastic. Glucose and lactose. नहीं, glucose plus fructose. Yes, Aditya, correct. गायत्री, ग्लूकोज लैक्टोज ये क्या है? चलो करेक्ट. तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज विल, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज विल फॉर्म व्हाट? सुक्रोज. फिर नेक्स्ट वन इज, सुक्रोज के बाद आता है, यस, लैक्टोज. व्हाट इज लैक्टोज? फॉर्म बाय glucose plus galactose. Very good, very good, very good, very good, very good. Glucose plus galactose, fantastic. And the third one is what? Yes, maltose, formed by what? Maltose is formed by glucose plus glucose. Lovely, fantastic. Glucose plus glucose will form the maltose. फैंटास्टिक. तो चलो, जैसे हम लोगों ने शुगर के एग्जांपल लिया था फ्रुक्टोज के लिए, फ्रूट शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली. देन माल्टोज के लिए वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ माल्ट. और फिर लैक्टोज के लिए वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ मिल्क, व्हिच इज मिल्क शुगर, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं. सो माल्टोज, करेक्ट, लवली. और उसके बाद हम लोगों ने polysaccharides पढ़े थे. What are the examples of polysaccharides? Can anyone tell me? सबसे पहला क्या आएगा? The first one is starch. Very good, Shraddha. Very good, Dhananjay. Ishita, perfect. Advay, starch, glycogen. Nishita, perfect. Glucose, नहीं, glycogen. Glycogen, sir. Lactose is milk sugar, not maltose. Yeah, lactose is milk sugar. Correct. And did I say maltose? Sorry if I said maltose. Maltose is basically malt, and lactose is basically the milk sugar. Very good. चलो, glycogen है, chitin है. Very good. फैंटास्टिक. स्टार्च, ग्लाइकोजन. वेरी गुड अमन. क्या परफेक्ट आंसर किया अमन ने. स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन. लवली. स्टार्च, उसमें से स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज कौन सा होता है? स्टोरेज फॉर्म, दैट इज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. तो ये क्या करते? दे विल स्टोर ग्लूकोज. वेरी गुड आदित्य. स्टार्च एंड वन मोर, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. वेरी गुड पूर्वेश. Lovely. So starch and glycogen are the stored form of glucose. This is starch will be stored in the plants, glycogen will be stored in the एनिमल्स. तो एनिमल्स में लीवर में और मसल सेल्स में भी स्टोर होता है. गुड. एंड व्हेन इट कम्स टू सेल्यूलोज, सेल्यूलोज विल प्रोवाइड व्हाट? वेरी गुड. श्रद्धा ने पहले ही आंसर कर दिया. सेल्यूलोज विल प्रोवाइड स्ट्रेंथ. वेरी गुड, लवली. सेल्यूलोज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ. यस, सफोरा. फैंटास्टिक. सानिका, अनन्या, सफोरा ने फिर से दिया इन सेल वॉल. वेरी गुड. गायत्री, परफेक्ट. नाइस. चलो, गुड गुड. अद्वैत, सपोर्ट स्ट्रेंथ. ओके, फाइन. So basically, cellulose will help in providing support and provide strength to the plant cells. उसके बाद आता है काइटिन. काइटिन क्या करता है? एक ही वर्ड चाहिए मुझे काइटिन के लिए. व्हाट इज दैट सिंगल वर्ड व्हिच वी कैन यूज फॉर काइटिन? एक्सोस्केलेटन. वेरी गुड. It forms the exoskeleton of arthropods. Lovely, Dhananjay, Nishita, perfect, perfect, Gayatri. Yes, right. So it is basically the exoskeleton of all the arthropods. ठीक है, तो that is basically the chitin. तो ये हम लोगों ने
कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने फैट्स के बारे में पढ़ा था। तो दो टाइप के फैट्स होते हैं, कौन कौन से दो टाइप के फैट्स है, जल्दी जल्दी बोलो। अच्छा प्रोटीन्स भी है ना बीच में, पहले फैट्स ले लेते हैं। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, वेरी गुड। सैचुरेटेड है क्या और अनसैचुरेटेड है क्या, वेरी गुड। सैचुरेटेड इज बेसिकली केमिकली कैसे रहता है, सैचुरेटेड केमिकली it does not have a double bond between the carbon, very good, no double bond na saturated mein, very good Safura, it does not have a double bond between the two carbons, whereas unsaturated mein it will have at least one or more than one double bonds, lovely, fantastic, so that is unsaturated. Or practically how we can differentiate between saturated and unsaturated, practically कैसे differentiate कर सकते हैं हम लोग, yes, very good, thick at room temperature is saturated and thin at room temperature is unsaturated, lovely, fantastic. What is the simple form of fat? Simple form of fats is called as fatty acids and glycerol, lovely, very good, very good, very good. Fatty acid, atharo, say fatty nahi, it is fatty acids plus glycerol, lovely, fantastic. So it is fatty acid plus glycerol is the simple form of fats, fantastic, good. चलो आगे, okay, I'm here again, can you all hear me? Yeah, okay. कॉल आया था अरे बीच में, आतिफ सर का कॉल आया था, आपके मैथ्स वाले टीचर, इसके लिए थोड़ा 2 मिनट उनसे बात की। चलो गुड, ओके। अच्छा, अमन इज सेइंग अच्छा, तो ये बात है, ये बात ऐसा कुछ तो भी अमन बोल रहा है मुझे, मन ही मन में। अच्छा, तो ये हो गया हमारा फैट्स। प्रोटीन्स का क्या हाल है भाई, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी, एमिनो एसिड्स, वेरी गुड श्रद्धा, गायत्री, गौरव, बेट्सी, लवली, धनंजय परफेक्ट, सानिका परफेक्ट, आर्या परफेक्ट, अनन्या परफेक्ट, lovely, everyone is giving correct answer. Amino acids, how many amino acids are there? Normally how many amino acids will form? 22, very good, fantastic, but a chain of single, very good, nice Purvesh, Madhurani perfect, Betsy perfect, Sanjeevani perfect, 22. Out of 22, how many are so essential and non-essential, lovely. So 14 are non-essential and 8 are essential. किसी ने कुछ अलग लिखा था शायद, somebody has written something else. 14 are non-essential, very good, okay fine. Chalo, 8 are essential and 14 are non-essential. Acha, why 8 are called as essential? Because they, all these amino acids are not produced in our body. So our body is video on करा ना, हाँ किया ना बुशरा, बुशरा तुझे ही नहीं दिख रहा है मेरा वीडियो, बाकी सबको दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली व्हाट, नो सर, श्रेया नहीं दिख रहा है वीडियो मेरा, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसा कैसा, मुझे तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, यस आई कैन सी, एवरीवन कैन सी, वीडियो इज विजिबल, वीडियो इज विजिबल, ओके। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, बस 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 बस, फुल अटैक कर देते तुम लोग सब। Okay, so basically, I was talking about the two types of amino acids, essential and non-essential. Essential इसके लिए because 8 are essential because we cannot synthesize them all. सबके सब synthesize नहीं होते, इसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं essential. Whereas inside the body, whereas non-essential मतलब the one which are all synthesized in our body. हमारा body खुद बनाता है उनको. That is why we are not dependent on external source. And since we are not dependent on external source, we call that as non-essential.
correct? So we have 8 essential and 14 non-essential. On the basis of that, we have two types of proteins. What are they? First class and second class protein. Very good. So first class proteins कौन-कौन से? अध्वय ने पहले आंसर दे दिया. Bhakti, perfect. First class and second class. So what are first class proteins? Where all the essential amino acids are present. Very good. Animal origin, diet of animal origin, fantastic. Non-vegetarian diet, lovely. So all non-vegetarian people are lucky because they are going to get all the amino acids. ठीक है, बॉडी में जो 14 बनते हैं वो सारे, प्लस आप नॉनवेज डाइट लेते हो तो उसमें से आपको इसेंशियल भी पूरा मिल जाएगा. Whereas in case of second class protein, since a few of the essential amino acids are produced, that is plant origin, that is why they are known as the second class proteins. क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ ही amino acids, essential amino acids उसमें से हम लोगों को मिलता है. Does that mean कि मेरा तबीयत नहीं बन सकता है? बन सकता है. We need to find out which are the vegetarian food which has all the, like, you know, if I take vegetarian diet in combination, that diet should be such that I'll get all the essential amino acids. If I'm not a non-vegetarian, if I'm a vegetarian, then vegetarians can plan their diet in such a way that they will start getting all the essential amino acids. Lovely. Okay? Yes, milk and soya. Perfect. Very good, Shraddha. Milk and soya is rich in proteins. Yeah, I know. Chalo, rice source of protein, that is veg. Okay, rice is also there, but rice में carbohydrates are more than the स्टार्च. बेसिकली राइस में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है अदर देन द प्रोटीन्स. आप माल्ट की बात कर सकते हो, उसमें प्रोटीन्स रहते हैं, पल्सेस में रहते हैं. यस, पल्सेस आल्सो करेक्ट अमूली. पल्सेस आल्सो हैव द प्रोटीन्स. लवली. चलो, तो ये तो हो गया हमारा प्रोटीन्स का पार्ट. अभी ना यहाँ पे अच्छा प्रोटीन का डेफिशिएंसी पढ़ना है हम लोगों को, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट राइट नाउ. वी विल स्टडी इट लेटर ऑन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फैट्स और लिपिड्स, सर तुमचे सर बुशरा बुशरा को अभी फटका मिलने वाला है. बुशरा इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि आपका वीडियो नहीं दिख रहा है. ऐसा क्यों बुशरा? बाकी सबको दिख रहा है. सर तुमचे स्क्रीन किसको वीडियो नहीं? सब लोग बच्चा बोल रहे हैं वीडियो इज विजिबल. अनन्या को भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है. या आई नो इट्स विजिबल. मेरा स्क्रीन शेयरिंग और मेरा वीडियो शेयरिंग दो अलग अलग डिवाइसेस से है, तो जब मैं बात करता हूँ तो मेरा वीडियो अपने आप स्क्रीन के ऊपर आ जाता है. इसके लिए तो स्पेशल अरेंजमेंट किया है. वीडियो इज सो क्लियर इट फील्स आई एम इन फ्रंट ऑफ ये देखो हीरो. ठीक है, चलो. एवर फ्रेश. या इशिता, आई नो. या नेटवर्क इशू रहेगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा, डोंट वरी. Bharat has given an advice. Those who are not able to see the video, please try to rejoin the meet. I thought Bharat bolega those who are not able to see the video, please join YouTube and you will see all the videos. Don't see those videos. Okay? चलो. Okay, fine. आगे बढ़ते हैं. हम लोग थोड़ा फैट्स की तरफ बढ़ते हैं. Let's try and understand the fat and lipids and their disease. Meaning, if the person has excess fat. क्योंकि क्या होता है ना, जैसे okay, fine guys. Keep aside that topic now. Video वाला topic बाजू में रख दो. Let us understand about the conditions related to the fat. If there is deficiency and if there is excess, अगर fat का deficiency हो जाता है तो आपने देखा होगा, देखो, which are the people, which is the age where you will find that the fat is very less in the body? Can anyone tell me? Usually आपके आजू बाजू में भी रहेगा, आपने देखा होगा. There is a particular age at which there is excess. Yes, perfect. 60, 70 plus. 70 plus especially old age. 70 प्लस. तो अगर आप देखोगे ना 70 प्लस के जो लोग होते हैं ना, पीपल हु आर 70 प्लस, ओल्ड पीपल, वेरी ओल्ड, नॉट नेसेसरली 63 young, but 70 plus. So what happens after 70? There is natural tendency that there is loss of fat. I can't say that there is deficiency. उनमें deficiency ऐसा नहीं है. I am giving you an example. Suppose if a normal individual suffers from fat deficiency, so how we can identify that? We can identify that by this condition known as dry and rough skin. तो अगर आप ओल्ड एज यानी 70 प्लस के लोगों का स्किन भी देखोगे ना, तो एकदम ड्राई, रफ और ऐसा झुर्रियां रहती है उसके ऊपर. बहुत सारे ऐसे यू कैन से क्रीजेस आते हैं या फिर वॉट एवर तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से ड्राइनेस आना चालू हो जाता है. दैट इज हाउ टिपिकली रिंकल्स. सो लॉट ऑफ रिंकल्ड स्किन विल बी सीन. जैसा ओल्ड एज में दिखता है ना, वैसा ही यंग एज में इफ देयर इज फैट डेफिशिएंसी. लेकिन अगर फैट एक्सेस रहेगा तो क्या होगा? फैट अगर एक्सेस रहेगा तो देयर इज अ कंडीशन नोन एज ओबेसिटी.
अभी ना तीन चीजें हैं। अभी ये टिपिकल ओबेसिटी का एग्जांपल है। दो लेडीज, ब्यूटीफुल लेडीज जो बैठे हैं यहाँ पे, दे आर टिपिकल ओबीस पीपल। लेकिन देर इज अ कंडीशन, यानी डिफरेंस होता है। देर इज समथिंग नोन एज द नॉर्मल वेट, या फिर यू कैन बी कॉल्ड एज ओवरवेट, और यू कैन बी कॉल्ड एज ओबीस। करेक्ट? तो बीइंग ओवरवेट, किसी का वजन ज्यादा है, इसका मतलब वो ओबेस है क्या? नहीं। सो ओबेसिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट देन द पर्सन बीइंग ओवरवेट। तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि लोग ओवरवेट होते हैं। सो ओबेसिटी इज नॉट सिग्निफाइड बाय द काइंड ऑफ वेट यू हैव। ओबेसिटी इज सिग्निफाइड बाय द कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग बीएमआई बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक रेट का इंडेक्स रहता है, तो दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। तो रेशो रहता है कि फैट का कितना रेशो है हमारे बॉडी में, उसके ऊपर से यू कैन डिसाइड एंड अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज ओबीस और पर्सन इज जस्ट overweight. Okay, so basically if there is excess, yeah, catabolism, anabolism, that is basically building up and breakdown process ना बेटा, body mass index बोलते हैं उसको। वेरी गुड भक्ति। तो बॉडी मास इंडेक्स से ही हम लोग को पता चलेगा कि ओबेसिटी यानी फैट एक्सेस है कि नहीं है। ठीक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अ पर्सन हु इज ओवरवेट विल बी ओबेस। ओके, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है। राइट, चलो ना, ये तो एक बेसिक्स है। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू डिटेल्स नाउ। रिमेंबर चिल्ड्रन, एक बात याद रखो, ओबेसिटी इज नॉट अ डिसीज, बट ओबेसिटी इज नोन टू इनवाइट डिसीजेस। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, ओबेसिटी इज नॉट अ डिसीज, ये बीमारी नहीं है, बट इट इज नोन टू इनवाइट डिसीज। की वजह से बीमारियां हो जाती है लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू नो, पीपल विल सफर फ्रॉम डायबिटीज, पीपल विल सफर फ्रॉम जैसे हाई ब्लड प्रेशर, या फिर हार्ट डिसऑर्डर्स और समथिंग लाइक दैट। सो ये सब बीमारियां आना चालू हो जाती है इन पीपल हु आर ओबेस। हाउ मच फैट शुड बी कंज्यूम डेली? वेरी लेस क्वांटिटीज ऑफ फैट शुड बी कंज्यूम डेली। बेटा श्रद्धा, आपने अगर फैट कंज्यूम नहीं किया अलग से तो भी चलेगा। ऑयल रहता है आपके खाने में, आपके खाने में घी रहता है, आपके खाने में कई बार बटर आ जाता है, तो उसमें से फैट आपको वैसे भी मिलने वाला है। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आप कैसा काम कर रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर आप फैट ज्यादा खा रहे हो तो मेक इट अ पॉइंट दैट यू डू योर एक्सरसाइज सो दैट यू कैन बर्न द फैट। घर पे बैठे हैं आराम से तंगड़े ऊपर करके और फिर फैट खाए जा रहे तो प्रॉब्लम आएगा। कार्बोहाइड्रेट भी एक्सेस में नहीं होना चाहिए। विल स्टडी बैलेंस डाइट। ओके, बाद में हम लोग ईशा बैलेंस डाइट पढ़ते हैं। ओके श्रद्धा, हम लोग पढ़ते हैं बाद, बैलेंस डाइट आएगा तो उसमें सारी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, डोंट वरी, अभी वो ब्रेक, अपना लिंक ब्रेक हो जाएगा। yes, athletes will need more fat because they require to do a lot of exercise. Correct. I know, तगड़े इज लाइक पैर, ऐसा पैर ऊपर करके बैठे जाते हैं ना लोग एकदम आराम से। चलो नेक्स्ट ना, ये तो हो गया हमारा फैट। अभी मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चंस है, तो लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दीस क्वेश्चंस। या क्वेश्चन के आंसर्स है, फैट इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, और प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी गुड, इट इज कंसिडर्ड एज सी 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 सी। सब लोग सी 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 बोल रहे हैं। ए भक्ति रॉन्ग, it is called as the rich source of energy. Main source of energy is carbohydrate, rich source of energy is fat. इतना याद रखो। कितना एनर्जी देता है रे फैट? हाउ मच एनर्जी डज फैट गिव? 9 किलो कैलोरीज। सिर्फ 9 नहीं लिखने का, 9 kcal। वेरी गुड, 9 किलो कैलोरीज। परफेक्ट परफेक्ट अंगुली, परफेक्ट भक्ति, आदित्य परफेक्ट, इशिता करेक्ट। Good. Second question. Saturated fatty acids remain thick in room temperature, do not form double, क्या है ये डबल बॉन्ड्स? वेट सफरा, पहले आने तो दो सारे ऑप्शंस। उसके बाद थर्ड वन, रिमेन्स थिन इन रूम टेम्परेचर, एंड बोथ ए एंड बी। अमूली घाई मत करो, डी परफेक्ट, डी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, भाई नहीं करने का, आराम से आंसर करो। द करेक्ट आंसर इज डी, remains thick at room temperature and do not form the double bonds. Perfect, so that is the saturated fats. So option is D. हमेशा ये याद रखो, ये एक्चुअली ट्रिक होता है, एग्जामिनर्स को भी पता है कि कहाँ पे आप लोग फंसने वाले हो, कहाँ पे आप गलत जाने वाले हो। रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, read the options properly, and then give your answer. That is very 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 important.
दो टाइप होते हैं, दो स्टाइल होता है आंसर का बायो में, इधर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। इफ यू नो द आंसर, करेक्ट इट। इफ यू डोंट नो द आंसर, फिर क्या करने का, फिर उसके बाद वी नीड टू फाइंड आउट द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज मेथड ऑफ एक्सक्लूजन। एक एक ऑप्शन को एक्सक्लूड करते जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल, रिमेन्स थिक एट रूम टेम्परेचर, हाँ शायद रहता है। डू नॉट फॉर्म द डबल बॉन्ड्स, यस शायद है ये। रिमेन्स थिन एट रूम टेम्परेचर, अरे नहीं ये तो अनसैचुरेटेड है। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बोथ एंड ए एंड बी। तो ऐसा ना आपको एक मेथड ऑफ एक्सक्लूजन इसको बोलते हैं, एक एक ऑप्शन को निकालते जाओ और उसके बाद जो सही लगता है उसको आप क्लिक करो। उसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है और आपको लगता है कि नहीं यार ये गलत हो सकता है या पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ, छोड़ दो उसको, वो क्वेश्चन को छोड़ देने का। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट जीरो देन -1। करेक्ट? तो जीरो से -1 हमेशा अच्छा ही होता है। तो सॉरी, जीरो अच्छा होता है -1 से, सॉरी, -1 इज ऑलवेज डेंजरस। अगर आपने रॉन्ग कर लिया और वो -1 हो जाएगा, सो जीरो इज ऑलवेज बेटर देन -1। यस, हाँ नीट में भी बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना चाहिए। यस ईशिता, कहीं नीट छोड़ो, जेई छोड़ो, कहीं पे भी नहीं करना चाहिए तुक्का, लगाने का ही नहीं। हाँ 20, 30, 40 अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो ऐसा कुछ करने का ही नहीं है ना, उससे बहुत डेंजरस। बच्चों ने, मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे पैटर्न बनाते हैं, वो ये रहता है ना, ओएमआर शीट रहता है ना, तो ओएमआर शीट पे पैटर्न बनाते रहते हैं। ऐसा एस शेप पैटर्न बनाएंगे, जिगजैग पैटर्न बनाएंगे, सारे क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग। ऐसा नहीं करने का कभी भी, ठीक है? वी आर नॉट डेयर टू क्रिएट मेक आर क्रिएटिव डिजाइंस, राइट? तो ऐसा नहीं करने का कभी, डोंट डू दैट। चलो थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टारवेशन व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ एंडिंग ऑफ फूड स्टॉप। सर सीईटी में तुक्का लगा सकते नहीं, कहीं पे भी तुक्का नहीं लगाने का, मैंने अभी बताया ना आपको, कोई भी एग्जाम हो तुक्का लगाने का नहीं। अथर्व, प्लीज डोंट डू दैट। आता है तो आंसर करो, नहीं आता है तो छोड़ दो, बेटर। ठीक है, तुक्के बुक्के नहीं लगाने के। सीटी में फिर भी आप कर सकते हो क्योंकि वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वी नेवर नो, के रूल्स बदल जाते हैं अचानक। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। चलो क्वेश्चन, ड्यूरिंग स्टारवेशन व्हाट विल बी सीक्वेंस ऑफ एंडिंग ऑफ फूड स्टॉप। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। अगर स्टारवेशन किसी का चालू है, कोई अगर खाना नहीं खा रहा है, तो उसके बॉडी में से फूड कैसे कैसे एंड होगा। सो इट विल बी फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट्स, देन फैट्स, देन प्रोटीन्स, देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट्स पहले जाएगा, प्रोटीन बाद में जाएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट, और फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन। नाउ टेल मी करेक्ट आंसर। सबसे पहले ये somebody saying A, somebody saying B, somebody saying B, क्वेश्चन मार्क लिखा मुग्धा ने, सर बी है क्या? ओके 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 ओके, ए ए बी बी सी सी, सारे ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास तो। ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया, किसी ने डी नहीं लिखा। चलो, जिसने भी सी बोला है ना, अच्छा सबसे पहला क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या बॉडी में से यूटिलाइज होगा, विच इज द फूड सब्सटेंस विच विल बी यूटिलाइज फर्स्ट बाय द बॉडी। पहले क्या यूटिलाइज होगा, जल्दी बोलो। नहीं, फैट नहीं, पहले कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होगा। मतलब कहना है से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका गया, मतलब ये मेरे लिए क्या हो गया, ये थॉट मेरे लिए हो गया 50-50। तो मैंने लाइफलाइन यूज किया 50-50, और मैंने सोचा कि पहले सबसे पहले क्या यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट। इसमें पहले फैट फैट है तो ये चला गया, तो सी और डी तो है ही नहीं, तो बचा कौन, ए और बी। तो ए और बी में से कौन सा रह सकता है, तो पहले कार्बोहाइड्रेट यूज होगा, उसके बाद बॉडी किसको यूज करेगा, बॉडी यूज करेगा फैट को, और उसके बाद करेगा प्रोटीन्स को। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन सबसे आखिरी में यूटिलाइज होते हैं बच्चों को, हमेशा याद रखो। पहले जब कभी भी कोई भी आदमी अनशन के लिए बैठ जाता है, कुपोषण करता है, तो उस टाइम पे ना पहले वो थोड़ा सा एनर्जी उसका ड्रेन डाउन होगा, वीक हो जाएगा। जो ऐसे थोड़ा सा मोटा रहता है या फिर फैट रहता है, तो एकदम दुबला पतला होना चालू हो जाएगा। और उसके बाद बाद में क्या होता है, लेटर ऑन उसके मसल्स का वेस्टिंग होना चालू हो जाता है, तो बॉडी के मसल्स है ना वो भी एकदम ऐसे थिन हो जाते हैं, सिर्फ बोन और स्किन रह जाता है। करेक्ट? Mugdha, any reason for this, meaning what? Any reason for this is carbohydrate, fats and proteins. Now see, carbohydrate is the carbohydrate is considered as the primary source or the main source of energy. Fat is considered as the rich source of energy. Proteins body directly use नहीं कर सकता है क्योंकि proteins muscles बनाते हैं ना, यानी muscles जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, तो उसका लॉस नहीं होना चाहिए, इसके लिए बॉडी सबसे आखिरी में प्रोटीन्स को यूटिलाइज करता है। करेक्ट? सो दैट इज हाउ the mechanism will take place. But sir, 85% carbs are obtained. Yeah, but I'm saying starvation, na beta.
ड्यूरिंग स्टारवेशन, यानी जब आप खाना नहीं खा रहे हो, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, आपने खाना ही नहीं खाया, तो क्या होगा? तो बॉडी पहले कार्बोहाइड्रेट यूज करेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तो फैट यूज करेगा, फिर फैट खत्म हो जाएगा तो प्रोटीन यूज करेगा। अभी प्रोटीन खत्म हो गया तो क्या करेंगे? तो बॉडी को यूटिलाइज करने के लिए, मतलब एनर्जी बनाने के लिए, देयर इज नथिंग, so the person will die. Perfect. Summarizing, the person will be dead. Lovely. ठीक है? So that is how it is. Glycogen is not, yes, glycogen is utilized ना बेटा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन खत्म होने के बाद फिर फैट यूज होना चालू हो जाए, फिर फैट खत्म होने के बाद फिर प्रोटीन यूज होना चालू हो जाए। ठीक है? ठीक है आदित्य? यस, परफेक्ट। चलो, तो ये तो हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट? विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन सी। ये पता नहीं क्यों आया इधर क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन विच वन इज द सोल्यूबल ये पता रहेगा आपको। विच वन इज सोल्यूबल, विच आर विटामिन आर सोल्यूबल इन फैट? के, बी, करेक्ट, ऑप्शन बी, ADEK, विटामिन के, ये बाद में वापस आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कभी कभी इसको मिस कर जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी? फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल ऑफ द अबव। क्या स्टोर नहीं होता है? वेरी गुड, अद्वै बी, श्रद्धा बी, आदित्य बी, इशिता बी, सब ने बी बोला, किसी ने डी बोला, गलत। वेरी गुड, सी किसी ने बोला, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर ना बेटा, आप ही तो बोल रहे हो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन। सो विच इज द वन विच इज नॉट स्टोर्ड? दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का जो सिंपल फॉर्म होता है ना, दैट इज कॉल्ड एज एमिनो एसिड्स। अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, ये शायद मैंने आपको बताया नहीं था, सो आई जस्ट गिव यू सम इंफॉर्मेशन ऑन दिस। एक मिनट, हाँ, थोड़ा इधर ध्यान दो सब। ओके, प्रोटीन का जो सिंपल फॉर्म होता है ना, हम लोग कैसे प्रोटीन्स खाते हैं देखो। जैसे, अच्छा, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? कॉन्सेप्ट देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ व्हाट? जल्दी जल्दी बोलो। हेलो। हाँ, वेरी गुड। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। आई विल जस्ट राइट डाउन ए, एमिनो एसिड्स। तो सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स इज एमिनो एसिड। अभी मतलब कैन आई से दैट अ चेन ऑफ amino acids will form one protein molecule? Correct, a chain of amino acids will form one protein molecule. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने चिकन खाया, ओके, मैंने ना एक मस्त ऐसा चिकन खा लिया, ठीक है, ऐसे कुछ भी बना रहा हूँ, तो मैंने चिकन खा लिया। अभी इसको खाने के बाद नेचुरली मैं क्या खा रहा हूँ? इफ आई एम ईटिंग चिकन, मतलब मैं क्या खा रहा हूँ? आई एम ईटिंग द प्रोटीन्स। तो मेरे बॉडी में, मेरे स्टमक में या फिर इंटेस्टाइन में क्या गया? प्रोटीन्स। मेरे स्टमक और इंटेस्टाइन ने ये प्रोटीन से क्या बनाया? ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके क्या बनाया? वेरी गुड, ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके मेरे बॉडी ने बनाया अमीनो एसिड्स। करेक्ट। अभी जैसे ही अमीनो एसिड्स बनेगा, ये अमीनो एसिड्स किधर जाएगा? थ्रू द ब्लड। दीज अमीनो एसिड्स विल नाउ एंटर इन द सेल। वेरी गुड। और सेल के अंदर क्या होगा? सेल के अंदर फिर से बन जाएगा चेन ऑफ एमिनो एसिड। और जब ये चेन ऑफ एमिनो एसिड बनेगा, तो फिर मैं क्या बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा मेरा खुद का प्रोटीन। करेक्ट। करेक्ट, तो ये ऐसे होता है। अभी देखो, यहाँ पे चिकन के बॉडी में भी चेन ऑफ एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बना, और मेरे बॉडी के अंदर भी चेन ऑफ एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बना। बट this protein is going to be different from this protein. Do you all agree to this? Will this protein, the one which is found in the chicken, will be different than the protein which is synthesized in my body? Do you all agree? Yes, very good. Somebody is asking me how, sir. वही तो आंसर दे रहा हूँ। Yes, perfect. ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? नो बेटा, बॉडीज प्रोटीन्स विल बी सिंपलर, ऐसा नहीं है श्रद्धा। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, नो, नॉट इवन कुक सफोरा, द चेन ऑफ एमिनो एसिड्स जो बनता है ना, इट इज बेसिकली सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। चिकन का चेन ऑफ एमिनो एसिड कौन डिसाइड कर रहा है? चिकन का डीएनए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल चिकन का चेन ऑफ एमिनो एसिड रहेगा 1 2 3 4,
डैश 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 20। ऐसा पूरा एक चेन ऑफ अमीनो एसिड बन गया चिकन का। लेकिन जब मेरे बॉडी में मेरा बॉडी खुद बना रहा है, मतलब मेरा सेल अगर मेरा प्रोटीन खुद बना रहा है, तो मेरा प्रोटीन्स भी कौन बना रहा है? मेरा डीएनए। अभी मेरा डीएनए और चिकन का डीएनए सेम रहेगा क्या? हम लोग भाई बहन है क्या? नहीं। या आरएनए, आरएनए कैरी करता है मैसेज, लेकिन डीएनए इज हैज द मेन इंफॉर्मेशन। ओके, लेकिन आरएनए वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है अनन्य। ओके, सो बेसिकली मेरे डीएनए के हिसाब से ये चेन ऑफ अमीनो एसिड बनेगा। तो मेरा डीएनए क्या बोलेगा? आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसा चेन मत बनाओ। तो मेरे बॉडी में चेन कैसा बनेगा? 9 20 1 3 4 8 12 डैश 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 लाइक दिस, और ये चेन ऑफ अमीनो एसिड बन गया। मतलब एमिनो एसिड का पोजीशन सीक्वेंस बदल गया, लेकिन इसने भी क्या बनाया? प्रोटीन। यहाँ पे भी सीक्वेंस ऑफ चेन एमिनो एसिड्स इज डिफरेंट, स्टिल यहाँ पे क्या बना? प्रोटीन। समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस। एंड दैट इज व्हाई यस, बोथ आर एज इफेक्टिव ना। ऑब्वियसली चिकन का प्रोटीन उसके लिए इफेक्टिव है, मेरा प्रोटीन मेरे लिए इफेक्टिव है। अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर, इसलिए तो क्वेश्चन आता है ना कि बॉडी सिंपल फॉर्म में फूड को क्यों बनाता है? अमीनो एसिड्स क्यों बनाने का? चिकन से डायरेक्ट प्रोटीन मिल रहा है तो सीधा सेल में डाल दो ना, फर्क क्या पड़ता है? बढ़िया है, लेकिन वो प्रोटीन मेरा सेल यूज नहीं कर पाएगा। मेरा सेल कौन सा प्रोटीन यूज करेगा? जो मेरा सेल खुद बना रहा है वो। पेप्टाइड नहीं बेटा, पेप्टाइड होता है। पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड इज बेसिकली प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म ऑफ प्रोटीन, that is called as the peptide. So it is like monopeptides, dipeptides, polypeptides. So amino acid is a monopeptide. Dipeptide मतलब two molecules. Polypeptide मतलब more than two. So ऐसा ये peptide change बनते हैं। ठीक है? So peptide is nothing but the simpler form, that is amino acids. ओके, तो आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। दैट इज व्हाई कई बार ऐसे होता है कि लोग बोलते हैं कि यार मैं इतना नॉनवेज खाता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा तबीयत नहीं बनता। एक्सरसाइज कर रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, लेकिन मेरा फिर भी तबीयत नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है ना, वो शायद उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा सा चिकन खाते हैं लेकिन तबीयत एकदम मस्त बन जाता है, एकदम तगड़े बन जाते हैं, एकदम हेल्दी बन जाते हैं, एकदम मस्त, मसल विसल बड़े हो जाते हैं उनके। क्योंकि उनका जो चेन ऑफ अमीनो एसिड जो बन रहा है उनके बॉडी में, और उनके बॉडी में जो प्रोटीन बन रहा है, दैट इज हेल्पफुल। क्योंकि प्रोटीन्स के भी टाइप होते हैं। प्रोटीन्स ब्लड में भी रहेगा, प्रोटीन मसल्स में रहेगा, प्रोटीन आईज में रहेगा, प्रोटीन सेल्स में रहेगा, प्रोटीन स्टमक में रहेगा, इंटेस्टाइन में रहेगा। प्रोटीन से हॉर्मोन्स बनते हैं, प्रोटीन से एंजाइम बनते हैं, प्रोटीन हर जगह है हमारे बॉडी में। प्रोटीन से हेयर बनते हैं, प्रोटीन से नेल बनता है, प्रोटीन से आउटर लेयर ऑफ द स्किन बनता है। एवरीथिंग इज प्रोटीन। तो मेरे बॉडी को बनाने वाला जो प्रोटीन रहेगा वो अलग रहेगा। हेयर का प्रोटीन अलग रहेगा, स्किन का लेयर का प्रोटीन अलग रहेगा, फिर लीवर के अंदर जो प्रोटीन रहेगा वो अलग रहेगा, ब्लड का प्रोटीन अलग रहेगा। तो ये सारे प्रोटीन्स मेरे बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो मेरे मसल्स को बनाने वाला प्रोटीन है वो मेरे बॉडी में अच्छे से नहीं बन रहा है। दैट इज वाई मेरा बॉडी नहीं बनता है। गेटिंग माई पॉइंट? एंड सर व्हाट अबाउट जिनका प्रॉपर वेज डाइट है? वेज का भी सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, वेज में भी सेम ही होता है। वेज डाइट जिनका है, यहाँ पे चिकन की जगह में पल्सेस या फिर सीरियल्स, पल्सेस लिख सकता हूँ, सिंपल है ना। तो वो ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, तो वो मैंने खाना चालू किया, तो उससे बस फर्क उतना ही है। बाकी कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, वो तो चेंज होगा नहीं। गेट इन दिस? और ये सब है ना, ये सब थियरी है क्या? तो ये सब ना थियरी हम लोगों को जेनेटिक्स में पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट ईयर जब आप लोगों को जेनेटिक्स का पार्ट आएगा 12th स्टैंडर्ड में ना, तो उसमें हम लोग ये सब कुछ पढ़ने वाले कि ये कैसे होता है और किस तरीके से होता है। जिनका नहीं, मतलब सर जिनका नहीं, बंदाना, अमन, क्या है ये? बंदाना क्या होता है? बंदाना, BANDANA, फिर से बोल। KVPY में नेक्स्ट ईयर आएगा मेरे ख्याल से जेनेटिक। 11th में नहीं है जेनेटिक्स, आपको पता। नेक्स्ट ईयर आएगा KVPY, 12th के KVPY में सारा रहता है। सी 11th का KVPY में, 11th का सिलेबस 11th में, 12th का सिलेबस 12th। सर तो ये प्रोटीन नहीं बनता तो इट इज गुड? हाँ, कौन सा प्रोटीन नहीं बनता? ये प्रोटीन बनेगा ही ना बेटा। सी आपने प्रोटीन खाया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए यानी स्टार्च खाया, आपने फैट्स खाए। आप बोलो या ना बोलो, आपकी इच्छा हो या ना हो, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन्स का एमिनो एसिड्स बनाएगा,
स्टार्च से ग्लूकोज बनाएगा और फैट से फैटी एसिड्स बनाएगा। आपकी कितनी भी इच्छा हो या ना हो, ये होने ही वाला है। क्योंकि जब तक ये नहीं बनता है तब तक डाइजेस्टिव सिस्टम से ये सारा फूड सेल के अंदर नहीं जाएगा, यानी ब्लड में नहीं जाएगा। तो नाउ इट डिपेंड्स ऑन द सेल ना कि वो कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। सर एवरी टाइम डिफरेंट प्रोटीन, यस, एवरी टाइम हर सेल में अपना खुद का प्रोटीन बनता है। स्किन सेल रहेगा तो स्किन सेल अपने हिसाब से प्रोटीन बनाएगा। ब्लड के अंदर जो प्रोटीन बनता है, फाइब्रिनोजन रहता है, थ्रोम्बोकाइनेज रहता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है। तो ये सब क्या है, ये सब अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स है जो सेल इसके अंदर ब्लड के अंदर रहते हैं। तो वो बनाने वाले सेल्स अलग रहेंगे। Yes, the DNA will remain the same, but the only thing is the information is going to be different on every cell and its DNA. तो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन अलग अलग रहेगा, वो हिसाब से प्रोटीन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बॉडी में अगर प्रोथ्रोम्बिन बनना है तो उसका एक पर्टिकुलर चेन ऑफ अमीनो एसिड रहेगा, तो वो सीक्वेंस अमीनो एसिड का अलग रहेगा। वही मेरे बॉडी के अंदर सपोज केराटिन बनना है तो अगेन डीएनए इंफॉर्मेशन विल रिमेन सेम, सिर्फ सीक्वेंस बदल जाएगा अमीनो एसिड्स का। सपोज मेरे बॉडी के अंदर कोई हार्मोन बनना है तो अगेन सीक्वेंस विल डिफरेंट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। जब प्रोटीन चेंज होता है मतलब क्या हो रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज गेटिंग चेंज्ड, राइट। सो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इससे अपने को पता चलता है कि हाउ डाइट इज इंपॉर्टेंट। सर न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 17th May, यू आर टीचिंग दिस बैच। ये नहीं समझा नीरज। अरे इतना बड़ा बड़ा मैसेजेस मत डालो यार। अनन्या, आपने बोला ना कि डाइट अच्छा होगा तो हेल्थ इंक्रीज। हाँ, यानी मतलब वहां पे जो मसल प्रोटीन क्या होता है ना, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है। हर कोई ऐसा इंसान होता है जिसको सलमान खान बनना है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई बनेगा ना। तो उसके बॉडी के हिसाब से उसका मसल बनेगा, लेकिन जैसा चाहिए एकदम तबीयत बनानी है, ऋतिक रोशन बनना है, तो वो शायद नहीं हो पाएगा किसी का बहुत जल्दी हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये इस तरीके से रहा। सर आप कौन कौन से चैप्टर सिखाने वाले हो? अरे यार, ये बीच में ऐसे क्यों पूछ रहे हो? ये सिर्फ ऋतुजा, यू कैन राइट दिस। आपको अगर समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है तो प्लीज राइट इट डाउन। ओके सर, आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाले हो? अथर्व में बहुत सारे चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। आउट ऑफ दिस सिलेबस आधा सिलेबस, यानी आधा सिलेबस में रहूंगा, आधा सिलेबस कोई और सर पढ़ाएंगे। जैसे राहुल सर पढ़ा रहे हैं आपके लिए नासिक के लिए, औरंगाबाद के लिए और कोई आएगा तो वो पढ़ाएगा। औरंगाबाद का मैक्सिमम सिलेबस विल बी टेकन बाय मी ओनली। ओके, ऑलमोस्ट 80% सिलेबस विल बी टेकन बाय मी। नासिक का 50% मेरा, 50% राहुल सर का। बाप रे, अनन्या सिंह सर ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। अनन्या, तू तो मुझे मार ही डालेगी। अच्छा लिसन, क्या होता है ना, अभी ये ना इसमें बहुत खिचड़ी है, कितना क्या समझ रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जो खाना हम लोग खाते हैं, ऑल आर फ्रॉम औरंगाबाद इन दिस मीटिंग, नो, नासिक औरंगाबाद मिक्स है बेटा। तो अभी यहाँ पे है ना, प्रोटीन्स जो हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग जो प्रोटीन्स खा रहे हैं उसका मेरा बॉडी क्या बनाएगा, जो प्रोटीन बनता है वो चिकन है जैसा मैंने एग्जांपल लिया, तो उसके अंदर का जो प्रोटीन है इट इज फॉर्म बाय द चेन ऑफ अमीनो एसिड, उससे ही बना हुआ है। जैसे ही मैं खाता हूँ मेरा बॉडी क्या बनाएगा, उसका अमीनो एसिड्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हेन द अमीनो एसिड्स आर फॉर्म, दे विल एंटर इन द सेल थ्रू द ब्लड। सो ब्लड से वो सेल के अंदर जाएगा। नाउ व्हाट द सेल इज गोइंग टू डू, सेल विल स्टार्ट फॉर्मिंग इट्स ओन चेन ऑफ अमीनो एसिड टू सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन। तो ये क्या हो गया ना, ये वाला जो प्रोटीन बना है ना, दिस इज माय ओन प्रोटीन, बॉडीज प्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चिकन का जो प्रोटीन बना था वो चिकन के डीएनए के हिसाब से बना था, information on the DNA. The protein which is synthesized in my cell is basically dependent on the kind of information I have on my DNA. Correct? तो वो डीएनए दोनों का अलग है, इसके लिए सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स विल बी डिफरेंट, एंड एज द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इज डिफरेंट, द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी डिफरेंट। वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, और हर एक बॉडी के लिए वो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज सुटेबल, जैसा सुटेबल रहेगा वैसा ये होता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सी द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, हम लोग पढ़ेंगे इसको। प्रोटीन सिंथेसिस का एग्जाम ये भी आएगा, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। एसएससी में जो लोग रहेंगे उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, बाकी का हम लोग 12th में वापस पढ़ेंगे ही, आएगा वो जेनेटिक्स में आएगा फिर से।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटीन्स का कॉन्सेप्ट। अभी बचा कौन है? बचा है अनिकांत ने लिखा यड, यड लिखा यड, अरिकांत यड, यस हाँ ओके। सो अभी बचा क्या है? अभी बचा है मिनरल्स, फिर बचा है वाटर, उसके बाद आता है आपका जैसे विटामिन, और उसके बाद आता है रफेज। ओके यस, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, वेरी गुड भूषण, भूषण को थोड़ा बहुत याद है कुछ तो मिनरल थोड़ा फटाफट पढ़ लेते, विल रन थ्रू द मिनरल्स फर्स्ट। नाउ मिनरल्स आर बेसिकली नेसेसरी फॉर ऑल द नॉर्मल बॉडी फंक्शंस। मेनली मिनरल्स आर essential फॉर समथिंग नोन एज होमियोस्टासिस। होमियोस्टासिस का मीनिंग आता है स्टेडी स्टेट और हेल्दी स्टेट। होमियोस का मीनिंग लाइक यू नो, होमो मीनिंग सेम ना, सो होमियो का मीनिंग आता है सेम और स्टेडी, स्टासिस मतलब स्टेट। सो व्हेन द बॉडी इज इन अ स्टेडी स्टेट, हम लोग बोलते हैं ना कि वाटर एंड मिनरल का बैलेंस होना जरूरी है, तो वो मिनरल्स उसके लिए बहुत ज्यादा काम में आते हैं, टू मेंटेन द वाटर एंड मिनरल्स का बैलेंस। और अगर वाटर का बैलेंस हमारे बॉडी में मेंटेन रहेगा ना, so that will definitely help in all the different types of functions. That is why minerals are essential. But at the same time, minerals, since they are required in very small quantity, so we call them as micronutrients. Okay? So they are basically necessary for normal body functions. Like for example, fresh fruits, green veggies, these are all the typical examples of the minerals. Okay? ये minerals के कुछ examples हैं, right? Now, कुछ मिनरल्स है जो हम लोगों को पढ़ना है, जैसे कैल्शियम एंड फास्फोरस, वी आर गोइंग टू स्टडी देम टुगेदर। फिर उसके बाद आयन आता है, Fe स्टैंड्स फॉर आयन, देन कम्स I स्टैंड्स फॉर आयोडीन, एंड देन कम्स पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, तो उसमें से मेन इंपॉर्टेंट इज गोइंग टू बी योर पोटेशियम एंड सोडियम, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर होमियोस्टेसिस, जो स्टेडी स्टेट। पोटेशियम और सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज सॉल्ट। तो ऐसा बोला जाता है ना, वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, वाटर एंड मिनरल्स का बैलेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस एज होमियोस्टेसिस। लेट अस स्टडी वन बाय वन। सबसे पहला आएगा, एंड देन ऑफ कोर्स द मैग्नीशियम। ठीक है, सबसे पहला आता है कैल्शियम एंड फास्फोरस। आप लोग हेडिंग लिखो, रनिंग नोट्स लिखते रहो, रुकना मत। कैल्शियम एंड फास्फोरस। ना डायरेक्ट इसका अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। कैल्शियम एंड फास्फोरस इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? इट इज बेसिकली रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। एज वी ऑल नो that the calcium and phosphorus will start getting deposited in the bones, in the teeth, so they will be essential for development of bones and teeth. So if there is calcium deficiency, acha, calcium is specifically useful for clotting of the blood also, and phosphorus is used for formation of ATP. If you remember adenosine triphosphate, so that phosphate molecule has phosphorus element in it. So it is useful for the production of energy. So one of the important components of energy is phosphorus. Calcium is useful for clotting of the blood. तो थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से कैल्शियम के साथ प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, तो उसकी वजह से क्लॉटिंग में, क्लॉटिंग मतलब क्या होता है? जैसे अगर इंजुरी हो गया, स्क्रैच हो गया, तो उसमें से ब्लड बाहर आना चालू हो जाता है, आफ्टर अ फ्यू मिनट द ब्लीडिंग विल स्टॉप, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉटिंग। सो दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। और नेचुरली कैल्शियम इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इन द न्यूरॉन। न्यूरॉन में जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेने के लिए कैल्शियम इज इसेंशियल। ठीक है, और अगर वो कैल्शियम नहीं रहेगा, तो इसका मतलब कैल्शियम का अगर डेफिशिएंसी हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होता है ना, इम्पल्सेस आर कैरिड इन रैपिड सक्सेशन, एक्सेसिव इम्पल्सेस कैरी होते हैं। अभी आप इमेजिन करो, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, मेनली ब्रेन को बहुत ज्यादा इम्पल्सेस नॉनस्टॉप स्टिमुलस जा रहा है, तो ब्रेन रिएक्ट करना चालू कर देता है, और बहुत फास्ट और बहुत रैपिड रिएक्शन ब्रेन के आते हैं। करेक्ट। सो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से एक कंडीशन आता है, दैट इज नोन एज टिटैनी, मतलब फिट्स आना, इसको बोलते हैं फिट्स। और ये फिट क्यों आया? कैल्शियम की डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वी कॉल दिस एज हाइपोकैल्सेमिया। करेक्ट। हाइपो मीनिंग लेस, कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम, हाइपोकैल्सेमिया लीडिंग टू अ कंडीशन नोन एज टिटैनी। टिटैनी को कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं फिट्स, झटके आना। तो छोटे बच्चों में ये कॉमनली देखा गया है। सो द चाइल्ड विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम दिस फिट्स बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। अभी कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन का डिसऑर्डर आएगा, टीथ का डिसऑर्डर आएगा, तो ये अलग अलग आते ही है। क्लॉटिंग मैकेनिज्म में क्लॉटिंग विल नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, इस तरीके से। फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या हो सकता है? कैन एनीवन टेल मी? फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी अगर हो गया तो क्या होगा? बोलो जल्दी।
phosphorus का deficiency, energy loss, otherwise saying energy, low energy, very good. And if there is low energy, why anemia, Ishita? If there is low energy, then yes, Shraddha has said rightly, the person will get easily tired, fatigue, lovely. क्योंकि एनर्जी नहीं है तो पेशेंट को वीकनेस आएगा. सो वन ऑफ द रीजन कुड बी कंटिन्यूअस फटीग, कंटिन्यूअस वीकनेस, डलनेस कैन बी बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस. करेक्ट. तो इसका ना ये कंडीशन आता है. सो हाइपोकैल्सेमिया इज decrease in calcium level leading to a condition known as tetany. So it is known as hypocalcemic tetany. Okay, so it is called as hypocalcemic tetany. तो ये कंडीशन आता है बिकॉज ऑफ कैल्शियम. नेक्स्ट इज आयन. अभी हम लोगों को पता ही है आयन इज यूजफुल फॉर व्हाट? इट इज बेसिकली यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन. तो उसमें से हीम इज बेसिकली एन आयन एंड ग्लोबिन. ग्लोबिन क्या रहेगा? ग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन. तो नेचुरली आयरन डेफिशिएंसी अगर होता है तो व्हाट विल हैपन? इफ देयर इज आयरन डेफिशिएंसी तो क्या प्रॉब्लम आएगा? जल्दी बोलो. इफ देयर इज आयरन, वेरी गुड. एनीमिया. इशिता इज परफेक्ट, सानिका इज परफेक्ट, सफुरा इज परफेक्ट, वेरी गुड. सो इफ देयर इज आयरन डेफिशिएंसी देन दैट विल लीड टू एनीमिया, और एनीमिया की वजह से चक्कर आना चालू हो जाता है. सफुरा करेक्ट. ठीक है. सो दैट इज हाउ एनीमिया विल बी प्रोड्यूस. सो वी कॉल दिस एज व्हाट? वी कॉल दिस एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. ऐसा हम लोग इसको बोलते हैं. ओके. चलो उसके बाद आता है आयोडीन. आयोडीन बेसिकली, आयोडीन एक ही जगह पे हम लोगों को लगता है. दैट इज फॉर द नॉर्मल थायराइड फंक्शन. नॉर्मल थायराइड फंक्शनिंग यानी क्या? इट इज हेल्पफुल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स. ओके. थायराइड हॉर्मोन्स के मैच्योरेशन के लिए ये काम में आता है. इज इट a serious issue? Yes, of course, Sephora, anemia will be a serious issue if the hemoglobin starts falling gradually. 4 या 5 हो जाता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है. फिर भी अगर ध्यान में नहीं आया तो देयर आर चांसेस दैट द पर्सन विल डाई बिकॉज ऑफ हार्ट कॉम्प्लिकेशंस. ठीक है. तो हाइपो टेंशन आ जाएगा, हार्ट एक्टिविटी कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, एंड पर्सन कैन डाई. So it is definitely going to be a serious issue if not treated in time. So you have to be very, 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 very careful. ठीक है. सर प्लीज टेल डिफरेंस बिटवीन गोइटर एंड दिस थायराइड. सेम बेटा. गोइटर इज बेसिक. अच्छा, गोइटर ये जो कंडीशन है ना, इशिता भी थोड़ा टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, बट लेट मी टेल यू इन सिंपल लैंग्वेज व्हाट इज. नो चेंजेस वॉइस नहीं. गोइटर में वॉइस का कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, बट गोइटर इज व्हाट? बेसिकली देयर इज स्वेलिंग, स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड. करेक्ट. तो अभी ये स्वेलिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि मैच्योरेशन थायराइड हार्मोन का हो नहीं रहा है. और अगर थायराइड हार्मोन का मैच्योरेशन नहीं होगा तो ये जो हार्मोन है ना वो इमैच्योर है, तो वो ग्लैंड के अंदर ही रहेगा जमा. इट विल नॉट स्टार्ट गेटिंग रिलीज इन द ब्लड. इट वोंट बी रिलीज इन द ब्लड. इट विल रिमेन विद इन द ग्लैंड इटसेल्फ. एंड इफ इट रिमेन्स इन द ग्लैंड इटसेल्फ देन ग्रेजुअली द ग्लैंड विल स्टार्ट अंडरगोइंग स्वेलिंग. तो ग्लैंड का ऐसा स्वेलिंग आना चालू हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू दिस कंडीशन नोन एज गोइटर. और ये गोइटर किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज देर इज आयोडीन. वेरी गुड. आयोडीन डेफिशिएंसी. करेक्ट. एंड इफ देर इज आयोडीन डेफिशिएंसी दैट विल लीड टू गोइटर. तो इसको इसके लिए बोलता जाता है आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर, और ऑल्सो कॉल्ड एज सिंपल गोइटर. Okay, so it is called as iodine deficiency or simple goiter. This happens in scurvy too when fibers. Yeah, scurvy is basically vitamin C ka disorder mainly rather than iodine. So iodine is basically useful mainly for this purpose. Okay. Yeah, fine. So that's an after effect, and the secondary effect of what you are talking about, scurvy ka. Okay, that will always be there. चलो आगे बढ़ते हैं. Now ओके. तो ये तो हो गया हमारा कीन, दैट इज कैल्शियम एंड फास्फोरस, आयरन एंड आयोडीन. आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस डाउन. मैं भी कुछ इंफॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ, सो मेक इट अ पॉइंट दैट यू राइट डाउन ऑल दैट इज गिवन हियर. ओके. चलो नेक्स्ट. उसके बाद आयोडीन के बाद देन कम्स द नेक्स्ट वन, दैट इज
पोटेशियम एंड सोडियम। ये अभी मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट, सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, नर्व सेल्स एज वेल एज द ब्लड प्लाज्मा। तो अगर मेरे बॉडी में इफ देयर इज एक्सेस सॉल्ट, सॉल्ट अगर मेरे बॉडी में ज्यादा हो गया, मेरे फ्लूइड में, विच इज द कॉमनेस्ट फ्लूइड, लार्जेस्ट अमाउंट प्रेजेंट इन द बॉडी, दैट इज सबसे ज्यादा वाटर? नो, फ्लूइड रे बेटा, पानी किधर रहता है? ब्लड, करेक्ट, इट इज द ब्लड विच कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। तो ब्लड इज बेसिकली कितना रहता है पता है? ब्लड 5.5 to 6 लीटर्स, इतना ब्लड रहता है हमारे बॉडी के अंदर। अभी इसमें अगर सॉल्ट ज्यादा हो गया तो वेरी गुड, अमन इज सेइंग दैट देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन, एंड दैट इज व्हाई देयर आर, अच्छा हम लोग को कितना सॉल्ट चाहिए पता है? वी रिक्वायर, जैसे सॉल्ट में आयोडीन भी होता है, बराबर है, आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं ना हम लोग उसको, आयोडीन भी होता है। यू नो हाउ मच वी रिक्वायर सॉल्ट? एक्चुअली ऑन अ डेली बेसिस वी रिक्वायर हार्डली अ पिंच और टू, एक या दो पिंच का सॉल्ट हम लोगों को लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन हमारे खाने में इतना सारा सॉल्ट रहता है, हर एक सब्जी में सॉल्ट रहेगा, रोटी में सॉल्ट रहेगा, जो पानी पीते हैं या फिर जूस पीते हैं या वॉट एवर वी डू, सब में सॉल्ट रहता है। एंड अमाउंट ऑफ सॉल्ट विच वी टेक इन इज इन ह्यूज क्वांटिटी। तो इसके लिए बॉडी हैज डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू मेंटेन द सॉल्ट बैलेंस, जिसमें किडनी भी काम में आता है। But then if all these mechanisms they fail, or if it overpowers this particular salt content in the body, then we are likely to suffer from such problems. And वही अगर salt deficiency रहेगा तो there will be decreased blood pressure, तो blood pressure आपका कम हो जाएगा। Hypertension and trauma are different. Yeah, trauma is basically a type of injury. Hypertension is increased blood pressure, not necessarily mental issue. Trauma is a medical term used for injury, ठीक है? तो उसमें हाथ के ऊपर, सर के ऊपर अगर लग गया तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रॉमा। तो मेंटल इंजुरी हुआ है ऐसा हम लोग बोलते हैं उसको, इसके लिए मेंटल ट्रॉमा ऐसा बोला, ठीक है? चलो, ये हो गया हमारा सॉल्ट, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, देन कम्स द लास्ट वन, दैट इज मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, और ये पिगमेंट बनता है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम। इसका जो पूरा केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर है ना, वो हम लोग फोटोसिंथेसिस नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ मैग्नीशियम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है? सो एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स के लिए भी आपको मैग्नीशियम रखेगा। उसके साथ साथ इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन द प्लांट्स। तो सपोज अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो जाएगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम अगर प्लांट में कम हो गया तो दैट विल लीड टू व्हाट? दैट विल लीड टू, यस, मैग्नीशियम इज यूजफुल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल बनेगा क्या? नहीं। तो अगर क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो व्हाट विल हैपन? If there is no chlorophyll, meaning there is no photosynthesis. Very good. There is either low photosynthesis or no photosynthesis. अच्छा, chlorophyll gives which color to the plant? लीफ को कौन सा कलर देता है? ग्रीन। यहाँ पे अभी क्लोरोफिल नहीं है या फिर कम है, तो ग्रीन कलर रहेगा क्या? नहीं, उसकी जगह वो बन जाएगा येलोइश। तो आप है ना, बाहर कभी भी आप जाओगे ना, तो कभी कभी आप देखोगे किसी प्लांट के लीफ के ऊपर ना येलोइश कलर के पैचेस दिखते हैं। दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन दैट रीजन। वन ऑफ द रीजन कुड बी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ठीक है? समझ में आ रहा है? सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड। तो आप कभी ऑब्जर्व करो, बाहर मार्केट, बाहर कभी घूमने के लिए गए तो प्लांट को ऑब्जर्व करो, तो आपको दिखेगा कुछ लीव्स के ऊपर ना येलोइश कलर के पैचेस होना चालू हो जाते हैं। इसका मतलब दैट plant is not normal, suffering from some disease. So either it is magnesium deficiency, phosphorus deficiency, कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है? सो क्लोरोसिस ऐसा उसको बोला जाता है, ठीक है? तो येलोइश डिस्कलरेशन आएगा। नो, येलो के लिए xanthophyll पिगमेंट होता है, बराबर है इशिता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, क्लोरोफिल इज लॉस्ट ना, तो इसके लिए ग्रीन कलर की जगह पे हम लोग को दिख रहा है येलो कलर लीफ का, मतलब डीजेनरेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज degeneration of leaf. Okay, yes, perfect, ठीक है? तो दैट इज हाउ वी सी द मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम का कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट अभी हो गया मिनरल्स, मिनरल्स के बाद आता है वाटर। वी ऑल नो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम वेयर डिड प्लांट, सॉइल से आएगा ना बेटा अमन, सॉइल में मैग्नीशियम होता है, ये तो उससे आएगा। यूजुअली फ्रॉम वेयर द प्लांट्स गेट मैग्नीशियम, बिकॉज़ वी डोंट प्रोवाइड या लाइट्स, हम लोग तो प्रोवाइड नहीं करते, बट सॉइल इज रिच इन ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, एंड द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्ड इज इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ट्रेसेस में ही होता है, करेक्ट। सो दैट इज व्हाई फ्रॉम द सॉइल ओनली दे विल स्टार्ट गेटिंग। सी प्लांट को कोई भी नरिशमेंट मिलता है ना तो वो सिर्फ सॉइल से ही मिलेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। प्लांट को कोई माउथ होता नहीं है कि हम लोग प्लांट को खिलाएंगे और वो खाएगा, करेक्ट। तो नेचुरली हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, प्लांट को जितना भी न्यूट्रिएंट्स मिलना है वो सारा मिलेगा फ्रॉम द सॉइल इटसेल्फ। सो द सॉइल शुड बी रिच इन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। इसके लिए फार्मर्स भी क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मिंग चालू करने से पहले सॉइल में बहुत सारा ये डाल देते हैं, जैसे यू नो यू कैन से फर्टिलाइजर्स डालते हैं विच आर रिच इन मिनरल्स, जिसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं। सो दे बेसिकली मेक दैट पर्टिकुलर सॉइल फर्टाइल, या मैन्योर भी उसको बोला जाता है। तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और उसके बाद फिर सीड्स आर सोन एंड देन द प्लांट्स विल कम और द क्रॉप विल कम, करेक्ट। चलो नेक्स्ट इज द वाटर। Now, water, as we all know, the one of the most important ingredients. Why? Because almost 65% of the body weight is of the water. तो हमारा body जो है ना, वो 65% of the body is basically made up of water. So everywhere you will find our body will have the water. So cell का भी जितना भी content होता है वो सारा water होता है. Highest amount of water is present in the blood. Because the quantity that's called as the major body fluid, जिसका quantity रहता है 5.5 to 6 liters. How much water do we require? Almost 1.5 liters per day. लेकिन ये सीजन में, समर सीजन में, इट शुड बी 3 liters पर डे। डबल होना चाहिए हमारा पानी, और पानी जितना ज्यादा पिएंगे उतना अच्छा होता है हमारे लिए। अच्छा, पानी ज्यादा पीने का, 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे, ऐसा मैंने आपको बोला। तो बच्चे कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, पहले सुबह एकदम 1 लीटर पानी पी लिया, दोपहर को 1 लीटर पानी पी लिया, शाम को 1 लीटर हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, और बीच में पानी नहीं पीते, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। तो 3 लीटर है ना, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा 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 पानी आप पीते रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर प्लीज शो लास्ट स्लाइड। ओके, गायत्री वांट्स टू सी लास्ट स्लाइड। यस गायत्री, दिस इज द लास्ट, प्लीज चेक। ओके, चलो। So that is why water, amount of water which we are going to take is going to be more, और थोड़ा 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 लेते रहने का, ठीक है। Now this is the water requirement. It is essential for all the metabolic activities. सेल के अंदर जितना भी metabolic activities होता है, जैसे for example anabolism and catabolism, these are the two major metabolic activities. So these activities are basically because of, मतलब chemical reactions, because any chemical reaction within the cell will require aqueous medium. Aqueous medium मतलब water. And since chemical reactions they require water, therefore this is one of the important ingredient. तो सेल में पानी ही पानी होता है. So what is the importance or function of water? Water कहाँ कहाँ और कैसे कैसे काम में आएगा? So एक मिनट. Okay. So basically water is required as a solvent for many organic and inorganic compounds. तो as a solvent करके काम में आता है. संजीवनी wants to see the last slide. अथर्व बोलता हूँ मैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है। दिस इज लास्ट स्लाइड संजीवनी, डू यू वांट टू सी दिस? डन संजीवनी? या ओके। सो अथर्व वाज आस्किंग व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सी मेटाबॉलिज्म, आई विल राइट हियर, बाद में इसको निकाल देता हूँ मैं। मेटाबॉलिज्म, okay. Metabolism is nothing but a type of chemical reaction where there is sum total of two chemical processes. कौन कौन सा? One is known as anabolism and the other one is known as the catabolism. Okay, anabolism and catabolism. Anabolism का मतलब आता है building. It is known as building a process. और catabolism का मतलब आता है, it is called as the breakdown process. तो ये केमिकल रिएक्शंस है ना, यस, डी, ओके, डीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं उसको, सो दैट इज ब्रेकडाउन प्रोसेस। तो ये जो सारे केमिकल रिएक्शंस है ना, टुगेदर वी कॉल दिस एज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन जहां पे भी होते हैं
वहां पे दो टाइप का एनर्जी रिलीज होता है। कौन कौन सा दो टाइप का एनर्जी रिलीज होगा? एक होता है आपका दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल एनर्जी, और दूसरा आता है दैट इज नोन एज हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी से क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसके लिए हम लोग इसमें से जो हीट जनरेट होता है, मेटाबॉलिज्म से जो हीट एनर्जी जनरेट होता है, उससे उससे जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीएमआर, बेजल मेटाबॉलिक रेट। सो दैट इज द कैलकुलेशन। तो उससे अपने को पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी का हीट मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज नोन एज बेजल मेटाबॉलिक रेट। सो दैट हैज टू बी नॉर्मल। आई होप अथर्व आपको समझ में आ गया। गुड। चलो नेक्स्ट। अभी so water will act as a solvent for many organic and inorganic. At the same time it is required for thermoregulation, जो अभी मैंने आपको explain किया। Thermoregulation is basically maintenance of the temperature. Thermo meaning temperature, regulation meaning to maintain, ठीक है, maintenance of the body temperature, तो उसके लिए इसकी जरूरत होती है। It is lost, water will be lost mainly through the sweat, through the urine, feces and exhaled air. हम लोग inhalation और exhalation करते हैं ना, exhalation और expiration, when the air comes out, लंग से हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सलेशन। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो वाटर विल बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। इट इज सेड इन फैक्ट दैट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग अराउंड 400 ml ऑफ वाटर इज रिलीज्ड थ्रू द एक्सहेल्ड एयर। इतना सारा पानी हमारे बॉडी से बाहर निकलते रहता है। दैट इज व्हाई वी रिक्वायर वाटर इन मोर क्वांटिटीज। 1.5 लीटर तो मैंने बोला है, तो वो 3 लीटर, 2 लीटर, 2.5 लीटर जैसा रहेगा, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। Okay, so this is the need for water. Why do we require water? So body में water is essential because it acts as a solvent. It is required for thermoregulation. At the same time, the water will be lost through the sweat, through the urine, feces, as well as the exhaled air, the air which we expire through the lungs. ठीक है? So this is the importance of water. Water के बाद then comes the next important, that is vitamins. Vitamins, the literal word meaning is vital amines. So basically there are the feces means excreta, potty, feces का मतलब आता है, ठीक है, yes पता है सोम मैंने अभी। Thermoregulation is basically maintenance of the body temperature, ठीक है। Thermoregulation मतलब maintenance of body temperature। कैसे टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा पानी? कैन एनीवन टेल मी, एक्सप्लेन मी, कैसे हो सकता है ये? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ दिखाता हूँ अमन, 1 मिनट पहले ये आंसर करो, थर्मोरेगुलेशन कैसे होगा? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। वेरी गुड श्रद्धा। जैसे फॉर एग्जांपल समर सीजन, हम लोग को स्वेट आता है ना, समर सीजन में क्या होता है ना, बॉडी का जो हीट है वो बढ़ जाता है। जैसे बॉडी का हीट बढ़ेगा तो रिलीज क्या होगा? स्वेट। और जैसे ही स्वेट रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा? बॉडी टेम्परेचर जो है, हमारा टेम्परेचर है वो अगेन कम होके नॉर्मल हो जाए। करेक्ट? सो दैट इज व्हाई दिस इज हाउ थर्मोरेगुलेशन विल टेक। ठीक है, तो इधर देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और देयर विल बी स्टोरेज ऑफ वाटर, ऑपोजिट जो समर विंटर सीजन में होता है। तो ऐसा बॉडी में विंटर में हम लोग को स्वेटिंग नहीं आता है ना, विंटर में शिवरिंग होता है। तो शिवरिंग क्यों हो रहा है? तो मसल एक्टिविटी बढ़ता है, मसल एक्टिविटी बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगा, बॉडी का हीट बढ़ेगा तो ठंड में आपको ठंड कम लगेगा, गर्मी ज्यादा महसूस। दैट इज व्हाई देयर इज शिवरिंग। तो ठंड में हम लोग शिवर क्यों करते हैं? इट इज अ बॉडीज मैकेनिज्म टू इंक्रीज द टेम्परेचर। yes, heat absorbed in the blood and excretion takes place. Okay, so हम समझाने मुझे क्या करना था। somebody wanted to see this last slide, ये वाला स्लाइड। एक मिनट, हाँ, किसी को तो भी ये स्लाइड देखना था। हाँ, अमन, अमन ये हो गया लिख के बेटा आपका? तो कौन सा? तो क्यों चाहिए था आपको? चलो डन। नो बेटा, आप लोग ये पीपीटी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग जरूर मिलेगा। सो यू कैन मेक द यूज ऑफ रिकॉर्डिंग टू राइट योर स्टडी नोट्स ऑल्सो। ठीक है, जितना हो सके उतना रेगुलर ये करो। थर्मो रेगुलेशन वाला, ये देख थर्मो रेगुलेशन वाला आ गया अमन, ले।
एक मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट। ओके चलो, now so this is about the water. Then after water comes the next important, that is the vitamins. Vitamins are also called as the vital amines. The literal meaning is vital amines, meaning they are basically the amino acid derivative. They are not the proteins, but they are the one which are made by amino acids. So we call them as amino acid derivative. ठीक है. Now vitamins for the first time were discovered by this scientist, Dr. Casimir Funk नाम के scientist ने vitamins को discover किया था. So they are the amines which are required for all vital life activities. Vital का meaning आता है very important, crucial, जिसके बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, उसको हम लोग बोलते हैं vital activity, vital. Okay, so vital life activity के लिए these amines are necessary. Another important MCQ question, ठीक है, vitamins are discovered by whom? So discovered by Casimir Funk नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था. चलो हो गया. Okay, now let us try and understand what are vitamins. So again, as I said, they are the organic compounds जो छोटे क्वांटिटी में लगते हैं, required in very small quantities, but where exactly are they required? So they are basically required for normal metabolism, health as well as growth. हमारे बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयर मैकेनिज्म में विटामिन आर इसेंशियल. करेक्ट. सो बेसिकली दे आर द सपोर्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. हमारे बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वी रिक्वायर हार्मोन्स, वी रिक्वायर प्रोटीन्स, बट विटामिन्स आर आल्सो इक्वली रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर ग्रोथ and to continue the growth and development in our systems, in our body. ठीक है. So that is why vitamins are essential. So again, a type of organic compound. Why organic compound? Because as I said, they are the amino acid derivatives, not exactly proteins, but derived from the amino acids. Okay, required in minute quantities, and that is why we call that as micronutrient, and required for the required in diet for normal metabolism. मतलब जितना भी chemical reactions हो रहा है वो normal होने के लिए, healthy रहने के लिए we require vitamins. Okay, now there are types of vitamins. अलग अलग type के vitamins होते हैं based on their solubility. ठीक है. There are some vitamins which are soluble in water and there are some vitamins which are soluble in fat. The one which is soluble in water is called as water soluble. The one which is fat soluble in fat is known as fat soluble. तो कौन से water soluble vitamins है? So we have one group that is called as vitamin B complex. Okay, यहाँ पे आप लिख सकते हो vitamin B complex और उसके साथ vitamin C. और fat soluble में भी है vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. So either you remember this as अड़े or you remember this as केड़ा, उल्टा. कीड़ा याद रखो, कीड़ा की जगह लिखने का केड़ा, KEDA. So these are the fat soluble vitamin. और ये छोड़कर बचा हुआ दो रहता है, that is vitamin B complex and vitamin C. So these are the types of vitamins which we have, which are based on the solubility. Okay, whether they are soluble in water or whether they are soluble in fat. ठीक है. So let us study one by one. सबसे पहला हम लोग विटामिन मेरे ख्याल से फैट सोल्यूबल पढ़ लेते हैं. तो कैसे पढ़ना है? तो ये चार पांच हेडिंग्स है, तो आप लोगों को ना टेबल बनाना पड़ेगा इसका, जिसमें पहला आपका रहेगा कौन सा विटामिन है वो, अलोंग विद दैट उसका साइंटिफिक नेम. फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में आएगा सोर्स, थर्ड कॉलम में आएगा फंक्शंस और फोर्थ कॉलम में आएगा डेफिशिएंसी, डिस्ट्रेस एंड सिम्टम्स. सो हाउ यू कैन डू इट? आपका जो नोटबुक है, सपोज अगर ये नोटबुक का आपका पेज है, तो ये पेज में, जैसा आपका ये पेज है, तो ये पेज में आपका पहला कॉलम रहेगा विटामिन का नाम और उसका साइंटिफिक नेम. उसके बाद फिर आएगा उसका, फिर यहाँ पे एक कॉलम आएगा उसका सोर्स का, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलम आएगा फंक्शन का, और आखिरी वाला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका डेफिशिएंसी, डिजीज एंड सिम्टम्स. राइट डाउन दीज कॉलम्स, और ये सारे कॉलम्स से हम लोगों को ये सारे विटामिन लिखने हैं. ठीक है. एंड मैं जानबूझ के आप लोगों को ये सारे नोट्स दे रहा हूँ क्योंकि आपको कहीं पे भी ये मिलेगा नहीं. ठीक है. सो यू आर क्रिएटिंग योर ओन स्टडी नोट्स, so you may not be dependent on any other source. Even if you have to, you will have this information in advance, right?
So I hope everyone has done this table. So let us start one by one. एक एक करके चालू कर देते हैं. सबसे पहला, the first vitamin which we are going to learn here is the vitamin A. Now, what is the scientific name of vitamin A? Scientific name of vitamin A is known as retinol. It is called as retinol. अब इसको retinol भी क्यों बोलते हैं? There is a reason. Let us understand the source. Reason मैं आपको diseases के टाइम पे बोलता हूँ. Sources. What are the sources? Green veggies, liver, जो खाते हैं हम लोग, कलेजी जिसको हम लोग बोलते हैं, eggs, oil, animal fats. So these are the sources of vitamin A. What is the function? So it is basically useful for healthy growth of the mucous membrane. हमारा जो digestive system, रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पूरा इनर लाइनिंग होता है, उसका हेल्थ मेंटेन करने के लिए वी रिक्वायर विटामिन ए, एंड प्लस हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द विजुअल रॉड्स इन रेटिना. मतलब रेटिना में रॉड नाम का एक सेल होता है, और वो सेल से एक इंपॉर्टेंट, वो सेल को एक्टिवेट करने के लिए इट रिक्वायर्स एन इंपॉर्टेंट पिगमेंट. दैट पिगमेंट इज नोन एज रोडोप्सिन. ठीक है. यस, रॉड्स एंड कोन्स. तो उसमें से हम लोग रॉड्स की बात कर रहे हैं, कोन्स की नहीं बात कर रहे. तो रॉड्स में एक पिगमेंट होता है नोन एज रोडोप्सिन. रोडोप्सिन इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए, और रोडोप्सिन की वजह से डेवलप होता है नाइट विजन. तो हम लोग को जो रात में या फिर अंधेरे में या फिर डार्क में जो हम लोग को दिखाई देता है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पिगमेंट कॉल्ड एज रोडोप्सिन, विच इज सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ विटामिन ए. तो आप इमेजिन करोगे अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया, तो यहाँ पे हेल्दी ग्रोथ, यस परफेक्ट अमन, नाइट ब्लाइंडनेस, लेकिन यहाँ पे ना ग्रोथ ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन का हेल्थ मेंटेन नहीं होगा. सो देयर विल बी अ कंडीशन नोन एज ड्राइनेस ऑफ द स्किन कॉल्ड एज जीरोडर्मा. अगर आप अभी फोटो भी देख रहे होंगे, सो इसमें आया है, सी हाउ द स्किन हैज बिकम. वेरी रेयर कंडीशन, लेकिन ऐसा होता है. दैट्स कॉल्ड एज जीरोडर्मा. दैट इज स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली. एंड देन देयर इज जीरोप्थेल्मिया. जीरोस का मीनिंग आता है XEROS. जीरोस का मीनिंग आता है ड्राई. ऑप्थेल्मिया का मीनिंग आता है आईज. सो ड्राइनेस ऑफ आई, लेकिन वो ड्राइनेस नहीं है, इट इज बेसिकली लॉस ऑफ और लैक ऑफ रोडोप्सिन. सो दैट विल लीड टू पुअर नाइट विजन. तो उसको हम लोग बोलते हैं, एज समबडी अनन्या अमन हैज राइटली सेड दिस, इट इज कॉल्ड एज नाइट ब्लाइंडनेस. Okay, so it is known as the night blindness. So xeroderma and xerophthalmia, ये दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट आते हैं बिकॉज ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी. कभी कभी विटामिन ए का हाइपर विटामिनोसिस भी होता है. हाइपर विटामिनोसिस हो गया तो उसकी वजह से भी म्यूकस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, लीडिंग टू थिकनिंग ऑफ द इनर वॉल्स. तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज आना चालू हो जाते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या ऐसे कंप्लेंट्स आना चालू हो जाएंगे इफ देयर इज हाइपर विटामिनोसिस. ये जो कंडीशन है ना, देखो विटामिन जब हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसका सिर्फ डेफिशिएंसी पढ़ा जाता है, नथिंग एल्स. बट देन देयर इज समथिंग नोन एज हाइपर विटामिनोसिस. ओके, हाइपर विटामिनोसिस इज नथिंग बट एक्सेस ऑफ विटामिन इन द बॉडी. अभी हाइपर विटामिनोसिस सबका नहीं होता. हाइपर विटामिनोसिस कोई पर्टिकुलर विटामिन का ही होता है, जैसे विटामिन ए रहेगा, विटामिन सी रहेगा, विटामिन डी रहेगा. तो इन सब का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B12, तो उसका हाइपर विटामिनोसिस होता है. वैसे कुछ का पर्टिकुलर विटामिन का ही एक्सेस होता है, अदरवाइज बाकी के विटामिन या तो नॉर्मल रहेंगे या फिर उसका डेफिशिएंसी. ठीक है. आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. आई एम गिविंग यू 30 seconds, प्लीज राइट दिस. स्क्रीनशॉट्स मत लो, लिखो. ओके, अमन इज सेइंग सरडन. सरडन. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट विटामिन विच वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज विटामिन डी. अच्छा, इसको हम लोग रेटिनॉल क्यों बोलते हैं पता है? जैसे अभी यहाँ पे आया ना, रेटिना के जो रॉड्स है वहां पे ये काम करता है, उसको हेल्प करता है, इसके लिए इसको नाम दिया है रेटिना. सिंपल. तो रेटिना से रेटिनॉल ऐसा नाम है. ओके, चलो गुड. तो अभी नेक्स्ट वन इज विटामिन डी. विटामिन डी इज आल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल. अभी इसको भी कैल्सीफेरॉल क्यों बोलते हैं? लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड दिस. व्हाई देयर आर सब विटामिन्स ऑफ बी, लाइक बोलता हूं,
जब बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे ना बच्चा लोग, उस टाइम पे मैं बोलता हूँ, क्योंकि हर एक का फंक्शन अलग अलग है। ओके, ना विटामिन डी, श्रद्धा, यस आई टेल यू श्रद्धा, ओके वेरी गुड। कैल्शियम से रिलेटेड है, इसके लिए कैल्सिफेरॉल, यू नो व्हाई? बिकॉज विटामिन डी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन्स। ब्लड में से कैल्शियम को बोन्स में लेके जाने का काम करेगा। वन ऑफ द important vitamin is vitamin D. Plus, it is helpful for synthesis of calcium also. What are the sources? Morning sunlight. ये आप लोगों को पता रहेगा, मॉर्निंग सनलाइट, अर्ली मॉर्निंग, लीवर, मिल्क, एग योक एंड फिश लिवर। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग सनलाइट, 9 बजे का, 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का सनलाइट नहीं, तो उसमें ना स्किन जल जाएगा, सनबर्न हो जाएगा, लेकिन विटामिन डी नहीं बनेगा। अच्छा, स्किन कैसा होता है अर्ली मॉर्निंग सनलाइट? मतलब सपोज अगर ये सनलाइट है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है सनलाइट, तो ये सनलाइट जब मेरे बॉडी में आ जाता है, तो ये सनलाइट में विटामिन डी होता है क्या? यानी यूवी रेज है, और यूवी रेज में से ऐसे विटामिन डी ऐसे अंदर 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 आएगा और हमारे बॉडी में अंदर चला जाएगा? नो, sunlight basically does not have vitamin D. When this light energy is absorbed by the skin, जब स्किन इसको एब्जॉर्ब करता है, तो स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, स्किन के जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स में एक सब्सटेंस होता है। देयर इज वन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द स्किन, वी कॉल दैट एज अ पिगमेंट known as sterol. Okay, and this sterol in the presence of the sunlight will get converted into vitamin D, right? So early morning sunlight say he sterol will be converted into vitamin D, because early morning sunlight will be absorbed well, and it has a light frequency which is supportive for the synthesis and conversion of sterol into vitamin D. ठीक है, अब आफ्टरनून के सनलाइट में जाओगे तो दैट लाइट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट, इनफैक्ट दैट विल डिस्ट्रॉय द स्टीरॉल। तो स्टीरॉल उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो सनबर्न जिसको हम लोग बोलते हैं ना, तो वो वाला कंडीशन आना चालू हो जाता है, तो स्किन डैमेज हो जाता है, स्किन एकदम जल जाता है। करेक्ट? सो दैट इज हाउ द विटामिन डी विल बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। सबको समझ रहा है ना ये सब? नो, क्या हो गया, सब लोग डल हो गए? दो दो लेक्चर्स इसके लिए क्या? हाँ, गुड। चलो नेक्स्ट, फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस? तो ये पता ही है, एसिमिलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। एसिमिलेशन का मतलब क्या आता है? व्हेन कैल्शियम एंड फास्फोरस फ्रॉम द ब्लड इज डिपॉजिटेड इन द बोन, जब वो बोन में चला जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। प्लस हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ। नेचुरली अगर इसका एसिमिलेशन होगा, कैल्शियम और फास्फोरस अगर बोन में जाएगा तो डेवलपमेंट होगा। तो सपोज इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो गया, तो चिल्ड्रन में इफ देयर इज डेफिशिएंसी देन दैट विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज रिकेट्स। करेक्ट? जिसमें बेंडिंग ऑफ द बोन्स, तो आप देखो ये बच्चे का जो लेग्स है ना, वो बेंड हो गया है, वी कॉल दिस एज रिकेट्स। दिस इज अ कंडीशन नोन एज रिकेट्स वेयर देयर इज बेंडिंग ऑफ द बोन्स। ओके, तो बोन ऐसे बेंड होना चालू हो जाते हैं, सो दिस कंडीशन इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज इन चिल्ड्रन। फिर आप बोलोगे कि सर बड़ों में हुआ तो क्या होगा? इन एडल्ट्स, एडल्ट्स में अगर ये डेफिशिएंसी हो गया तो देयर इज कंडीशन नोन एज ऑस्टियो मलेशिया। मलेशिया नहीं, अपने को घूमने के लिए नहीं जाने का, इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो का मीनिंग आता है, ऑस्टियो का मीनिंग आता है बोन, मलेशिया का मीनिंग आता है सॉफ्टनेस। सो देयर इज सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या? ऑस्टियोसार्कोमा इज बेटा कैंसर, ऑस्टियोबोन सार्कोमा कैंसर, सो इट इज कैंसर ऑफ बोन, बोन कैंसर होना जिसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोसार्कोमा। सो बेसिकली हियर देयर इज सॉफ्टनेस ऑफ द बोन्स, सो बोन्स दे बिकम सॉफ्ट। अगर मेरा बोन सॉफ्ट हो गया तो क्या होगा? कंडीशन क्या होगा? अगर मेरा बोन सॉफ्ट है तो बेंड होंगे, सिर्फ बेंड होंगे। एडल्ट के बोन्स तो बेंड होना मुश्किल है ना, लेकिन वो सॉफ्ट हो गए तो देयर विल बी a condition no strength, but what will be the problem? The patient will have a problem of fracture, fractures of the, yes Sanika, perfect, so fracture of bone, तो मल्टीपल फ्रैक्चर्स आना चालू हो जा रहे हैं, तो ये पेशेंट बेड रिडन ही रहते, परफेक्ट आ रही है, इट इज कॉल्ड एज अ फ्रैक्चर। तो ये ना एडल्ट्स में होता है, तो इसको एडिशनल लिख के रखो, इन एडल्ट्स इट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोमलेशिया, दिस इज विटामिन डी का डेफिशिएंसी। ठीक है,
आगे बढ़े। बोन डॉक्टर इज कॉल्ड एज ऑस्टियोलॉजिस्ट। नहीं रे, ऑस्टियोलॉजिस्ट ऐसा क्यों? बोन डॉक्टर ऐसा नहीं होता है, इट इज बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं इसको, ऑर्थोपेडिक जो होते हैं ना करने वाले, ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। सो दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द बोन्स, द स्केलेटन। ओके, चलो नेक्स्ट वन, विटामिन डी के बाद आता है विटामिन ई, which is also called as tocopherol. The name is tocopherol. Now, why the name? Sources: green vegetables, eggs, and butter. Function देखो, helpful in normal reproduction, useful for the rapid cell division, and also of the growth of the embryo. So naturally, अगर इसका deficiency रहेगा, तो क्या problem आएगा? So there will be something called as sterility. We will not say that there is infertility. There is difference in infertility and sterility. Infertility is permanent inability to reproduce. ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन कभी होगा ही नहीं, सो वी कॉल दैट एज इनफर्टिलिटी। उसके कॉजेस अलग होते हैं, जनरली इट इज जेनेटिक इन नेचर। वेयर एज स्टेरिलिटी मतलब टेम्पररी रहता है, कुछ बिकॉज ऑफ सर्टन कॉजेस देयर विल बी इनएबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, वो कॉज को आपने हटा दिया, रिप्रोडक्शन विल स्टार्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज स्टेरिलिटी। स्नेहा को प्रीवियस स्लाइड चाहिए, ये स्नेहा, ये देखो, हो गया स्नेहा? चलो लिख लो, ये विटामिन ई का भी लिख लो। Sterility is basically inability to reproduce. It's a temporary condition, and infertility is something which is genetic, permanent रहे, तो उसका ट्रीटमेंट डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज योर विटामिन ई। विटामिन ई के बाद द लास्ट विटामिन इन फैट सोल्यूबल इज विटामिन के। Vitamin K, which is also known as phyloquinone. The name is phyloquinone depending upon its chemical nature. तो इसके लिए उसको phyloquinone है नाम दिया है। So that's a type of amino acid which is helpful for the synthesis of this vitamin K. अमूली मुड़े को लास्ट स्लाइड चाहिए। ओके अमूली, ऋतुजा को भी चाहिए। चलो अमूली ले लो, ऋतुजा ले लो, ये स्लाइड आपके लिए। फिनिश्ड? ऋतुजा एंड अमूली डन। ओके अमूली का हो गया, ऋतुजा आपका हो गया बच्चा? ऋतुजा, यस। चलो सो फाइलोक्विनोन, सोर्सेज देखो क्या क्या इसके। द सोर्सेज आर ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पेशली कैबेज, पत्ता गोभी, जो एकदम सस्ता वाला सब्जी। नहीं, यूजफुल फॉर व्हाट? यूजफुल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। तो नेचुरली अगर विटामिन के नहीं रहेगा तो देयर विल बी फॉल्टी क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। Faulty clotting of the blood is basically there is bleeding tendency or bleeding disorder which will take place. तो ऐसा यू नो एक बार ब्लड आना चालू हो गया, इंजुरी हो गया तो ब्लीडिंग चालू हो जाता है, ब्लीडिंग चालू हो गया ना तो इट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, मतलब क्लॉटिंग फॉल्टी होता है। इट इज नॉट दैट द ब्लड विल नॉट क्लॉट, सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज clotting time. Okay, there is normal clotting time which is from 2 to 4 minutes. 2 से 4 मिनट में नॉर्मल कंडीशन में आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है, अगर इंजरी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बिकॉज देर इज विटामिन के डेफिशिएंसी, ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी सेम प्रॉब्लम आता है, देर इज नो प्रॉपर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, तो इंजरी भी उनका हील नहीं होता है, तो उनका इंजरी भी सालों साल ऐसे ही चालू रहता है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, विटामिन की डेफिशिएंसी, के डेफिशिएंसी है ना, तो उसकी वजह से ये जो 2 से 4 मिनट में होने वाला है ना, इट माइट टेक इन द रेंज ऑफ मे बी 8 to 10 minutes और मोर देन दैट, मतलब स्लो होगा और वो फॉल्टी रहेगा, मतलब क्लॉटिंग भी ठीक से नहीं हो पाएगा। So that is how we see the condition of faulty clotting in vitamin K. वेरी रेयर कंडीशन, क्योंकि कैबेज और ये सब ग्रीन वेजिटेबल्स और कैबेज हम लोग वैसे भी बहुत खाते रहते हैं, तो हम लोगों को विटामिन के वैसे भी इजीली मिल जाता है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस। वेरी रेयरली पीपल विल सफर लाइक दिस। Does the deficiency affect the lymph? No, it won't affect the lymph beta. Clotting mechanism is completely different. It has nothing to do with the lymph. Platelet count normal रहेगा,
लेकिन क्लॉटिंग इज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट, लेकिन वो क्लॉटिंग के लिए जो बाकी के जो सब्सटेंस जैसे थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जो लगता है ना, वो सब नहीं रहेगा, या फिर वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगे. सो दैट विल लीड टू दिस कंडीशन. Yes, we can definitely treat this. Start providing them with vitamin K का tablets and the person will be better. आप विटामिन के उनको प्रोवाइड करो, ठीक हो जाएंगे. Yes, green vegetable is therefore almost common source. इसके लिए green vegetables खाना बहुत जरूरी है. हाँ, very good. पूरे बैच में से एक को तो पता चला कि green vegetables खाना बहुत जरूरी है. करेक्ट. हफ्ते में 2-3 बार ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस 2-3 बार होना बहुत जरूरी है. बाकी दाल चावल तो हम लोग वैसे भी खाते हैं. नॉनवेज खाते हैं तो पल्सेस थोड़ा कम खाए तो भी चलता है. ठीक है, चलो गुड. सो यस, ऑलरेडी खाते हैं सर. Thank you very much guys. We'll stop here now because it's almost 6 past 3 now, 4. तो हमारा टाइम यहाँ पे खत्म होता है. Thank you. Bye bye. See you. Take care. Stay home and stay safe. Bye. चलो bye bye. See you. Yes. Thank you guys. Thank you Dhananjay. Bye bye. Ishita. Bye Soham. Bye Shraddha. पूर्वेश ने कितना बड़ा बाय सर लिखा है. Thank you. Bye bye. See you. See you. See you. See you. Bye bye.